Good morning, students. How are you all? Welcome you in Augmenting Concepts, and we are going to continue with the session of respiratory system, which we are already continuing, and we have done with the larynx and pharynx portion. Today we will be doing trachea in very detailed, as we are doing already all the sessions. And students, I wanted to tell you that after we have done with the respiratory system, we are going to deal with the skeletal system. Means the complete skeletal system will be taught session wise. So continuing with the session number 5th, today is the 6th session in which we will look how the trachea works. So on the screen you can see the diagram which we have started with, in which you can see the whole respiratory tract in human, in which we will deal with the trachea, which you can see is over here, which is in the thoracic cavity, and some part is in the neck portion. Fine. So here is the bony palate, nose, nostrils, epiglottis, pharynx and larynx. After this is the trachea. You can see this is trachea. It is also commonly known as windpipe. Why it is called so? Because the air which is inhaled is passed through this passage mainly. The work of this passage is to pass the air for breathing into the lungs. If there is no trachea, the air will not be passed into the lungs. As you can see, this is the trachea and this is bifurcating in two parts, which is going into the lungs, and lungs are filled with air. How it is possible? Only when the trachea is itself bifurcating in two bronchi. Fine. So this is the trachea only which inhales or takes the air, fine, which is allowing the air to pass through it. Isn't it like that? And in the diagram, in an overview manner, you can see that the trachea is protected with the cartilaginous rings. Fine. This rings, you can see these rings. These are the cartilage which are in C shape. The back portion of this trachea is not covered with these rings because there is vertebral column at the back. Fine. Vertebral column at the back. So C-shaped cartilages protect the whole trachea. Why it needs protection? Because it needs some strength to stand straight, isn't it? It has to be straight. Only then what will happen? The wind will pass through it. No, if it is not tough, how will the wind pass through it properly? And how the structure will be working properly if there is no cartilaginous protection, strength? Secondly, the cartilages also protects the trachea from any external injury, right? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया है, ये विंड पाइप है. फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग, के जो ये ट्रैकिया है, ये क्या है? लैरिंग्स और फेरिंग्स के बाद है. आप यहाँ देख रहे हैं नोस्ट्रिल है, नोज है, बोनी पैलेट है. उसके बाद क्या है? यहाँ पर ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है. अभी हम लोग आगे इसका देखेंगे डायग्राम, किस तरीके से इसका सिचुएशन है. आप देख रहे हैं ट्रैकिया दो भागों में बट रहा है, दो ब्रोंकाइज में डिवाइड हो रहा है, जो कि कहाँ जा रहे हैं? लंग्स के अंदर जा रहे हैं. अगर ये ट्रैकिया ना हो तो क्या होगा? लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुँचाने का और कोई मार्ग नहीं है. सो ट्रैकिया जो है वो मेन काम क्या है उसका?
जो एयर इनहेल की जा रही है नोज़ के थ्रू उसको लंग्स तक पहुंचाना। फिर हमने बात की कि जो ट्रैकिया है वो सी शेप्ड कार्टिलेजेस से ढका हुआ रहता है, जिससे इसको स्ट्रेंथ भी मिलती है सीधा रहने के लिए, प्लस इसको प्रोटेक्शन भी मिलता है किसी बाहरी आघात के अगेंस्ट। मूविंग फॉरवर्ड यू कैन सी दिस डायग्राम हाउ इट इज कि यहाँ पर तो क्या है, वॉइस बॉक्स है, इट इज द लैरिंग्स, isn't it? And after the larynx, after this bone, this is the bone, after this bone the trachea is starting. यहाँ से trachea start हो रहा है। इस पे कैसे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, पूरे ट्रैकिया पे रिंग्स ही रिंग्स हैं, जिससे कि ये सीधी भी रहती है और कोई एक्सटर्नल इंजरी से इसका प्रोटेक्शन भी होता है। इसके ऊपर कई ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, ठीक है, और आर्टरीज हैं, ठीक है, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, इन सब के होते हुए इसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है ना। तो प्रेशर पड़ने से क्या होगा, ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं रह पाएगी। अगर एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं रहेगी तो जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो प्रॉपरली पास नहीं होगी हमारे दोनों लंग्स में, है ना। देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिया है, यहाँ जो ये ब्रोंकाइज में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इसके थ्रू एयर जो है वो लंग्स में जा रही है। अगर इसके ऊपर हार्ट भी है, ठीक है, आप डायग्राम में देखेंगे, अगर हमारी वीडियो में कार्डियो जो सेक्शन है, हमारा कार्डियक सेशन जो है, क्योंकि हम हार्ट के बारे में कंप्लीट सेशंस ले चुके हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड रहता है। हार्ट के प्रेशर से भी ट्रैकिया का जो पोजीशन है वो बदल सकता है। उसके ऊपर जो मसल्स हैं, isn't it, जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके प्रेशर से पहले ही यहाँ पर जो ब्रोंकाई है वहाँ यहाँ पर ये इस तरीके से पोजीशन लेता है, ठीक है। और ये जो ट्रैकिया है इसको अपनी पोजीशन में रहने के लिए कार्टिलेजेस की जो है वो ज़रूरत रहती है, प्लस इसका प्रोटेक्शन भी होता है। तो इस तरीके से आई होप यू हैव सीन द डायग्राम वेरी क्लियरली नाउ। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि पीछे जो है यहाँ पर ये वर्टिब्रल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है ना आपको, ये पीछे ब्लू वाली ट्रैकिया के जस्ट पीछे देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और ये रिब्स केज हैं। ये जो चैम्बर है चेस्ट का, इसे कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर मीन्स हार्ट कैविटी, थोरेसिक चैम्बर मीन्स हार्ट कैविटी। इसी थोरेसिक चैम्बर के अंदर ट्रैकिया भी यहाँ पर बीच में मौजूद है, ठीक है। और इसी थोरेसिक चैम्बर के अंदर लंग्स भी मौजूद है। आप देख रहे हैं ये रिंग्स बड़े बड़े, ये रिब्स केज हैं, फाइन। अब आप थोड़ा सा नोट्स इसका देखें। ट्रैकिया, trachea is also called windpipe. It is 4 inches long, less than an inch in diameter. 4 inches long is the trachea. Trachea is 4 inches long and less than an inch in diameter. What do you mean by diameter? Double of radius means गोलाई जो है उसकी वो कितनी है, 1 इंच से कम है। The trachea begins just under the larynx and continues up to the breastbone or sternum. ठीक है, जो sternum है वहाँ तक ये larynx से start होती है और sternum तक जाती है। Sternum is the middle bone of the chest. ठीक है, the trachea then divides into 2 smaller tubes. ट्रैकिया जैसे कि हमने देखा है 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होती है। जस्ट पीछे आए आप देखें, ये देखिए ये ट्रैकिया है और ये 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये देखिए ये ट्रैकिया है, दिस इज द ट्रैकिया एंड दीज आर द 2 स्मॉल ट्यूब्स इन विच दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड, फाइन। तो यहाँ पर देखें हम कि ट्रैकिया ट्रैकिया इज देन डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स called bronchi, 1 bronchus for each lung. ठीक है, bronchi is the plural term and bronchus is the singular term.
ठीक है. तो both the bronchi are into the lungs, are extended into the lungs. This is the diagram, you can see very clearly. This is the trachea. At this point, the trachea is divided into two bronchi. One is bronchus and plural is bronchi, and this bronchus is extending into the lungs. Fine. And in the next session we will discuss how this bronchi is supplying air to the each part of the lung, and how there the oxygen is getting into the blood, and blood CO2 is getting into this structure, and how it is exhaled through the nose. Fine. तो आगे हम देखें, द ट्रैकिया इज अ पैसेज फॉर एयर. ये हमने सबसे क्लियर आपको पहले ही कर दिया था कि जो ट्रैकिया है वो क्या है, एयर को पास करने के लिए पैसेज है. इट इज़ ऑल्सो मॉइस्टन, मतलब नमी. इस जो भी एयर हम इनहेल करते हैं, हो सकता है बहुत गर्म है, हो सकता है बिल्कुल ठंडी है, हो सकता है सूखी है, कैसी है, तो उसको मॉइस्टन किया जाता है, उसमें नमी दी जाती है इस ट्रैक से होते हुए जब जाती है. एंड वार्म्स, ठीक है, ताकि लंग्स को अचानक से कोई शॉक ना हो, तो उसको मॉइस्टन किया जाता है हवा को, और उसको वार्म किया जाता है बिफोर पासिंग इनटू द लंग्स. लंग्स के अंदर पास करने से पहले, लंग्स के अंदर जाने से पहले, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ की बात कर रहे हैं ट्रैकिया की, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ट्रैकिया है. ठीक है. इस ट्रैकिया में से, जहाँ से सांस लिया अपने नाक से, लैरिंग्स फेरिंग्स सब जगह से होते हुए जब ये ट्रैकिया में आ रही है, तो आपको पहले भी हमने बताया था कि नेजल कैविटी में भी इस एयर को मॉइस्टन किया जाता है. तो आगे भी जब वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो गया, बाकी यहाँ पर होता है कि यहाँ पर भी हवा को गर्म किया जाता है थोड़ा बहुत, मतलब जो अपनी खून की गर्मी होती है उससे वार्म होता है थोड़ा सा, और मॉइस्टन भी होता है यहाँ पर, उसको मॉइस्टन भी किया जाता है. ठीक है. बिफोर पासिंग इनटू द लंग्स, लंग्स में जाने से पहले यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, वार्म. ट्रैकिया ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सरफेस फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टिकल्स. ठीक है. ट्रैकिया का क्या काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को. भाई आपको मालूम है लंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज इट ओनली वर्क्स फॉर द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. इन द इनसाइड द लंग्स व्हाट इज द फंक्शन, कि जो ऑक्सीजन है हवा में, दैट इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू द ब्लड. ठीक है. ब्लड में दे दी जाती है, एंड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज अगेन passed through the lungs, through the trachea, through the nasal chamber and out of the body. Fine. तो इतना जब डेलिकेट ये है, तो यहाँ पर अगर कोई हम डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लेते हैं, या फिर कोई फॉरेन ऐसी कोई चीज़ इनहेल कर लेते हैं, तो वो अगर हमारे अंदर चली गई और लंग्स में जाके फंस गई, तो वहाँ पर हमारा सारा सिस्टम चोक हो जाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, we will not be able to take in the oxygen into the blood, and also we will not be able to pass the CO2 out of the body, isn't it? So it is very important that any kind of dust, any kind of foreign particles should be stopped outside the lungs. So trachea is also performs this function. Trachea also protects respiratory system from any foreign particles. It is also lined with a moist mucous membrane. What is mucus? One sticky and slippery type of liquid which provides a lubricant, plus also stop any foreign particles by stopping it and throwing it out with the medium of coughing. Fine. It is also lined with a moist mucous membrane. What is lined with the mucous membrane? The inside structure, inside surface of the trachea is lined with the mucous membrane, and a layer composed of cells. What is more it is having? First of all, it is having mucus cells, mucous membrane it is having, which secretes mucus,
As a result, any foreign particle, if it is inhaled, it's stopped over here, plus it is providing one moist and clear pathway for the air to pass on. Next is composed of cell. Next is it is having a layer of cells which contains small hair-like projections called cilia. Another interesting fact is that trachea is composed of small tiny hair-like structures which are called cilia. Fine. कैसे हो रहा है ये देखें ज़रा, डायग्राम रेफर करें वापस से. ये ट्रैकिया है, इसको अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काट के देखें, ऐसे लंबाई ऐसे काट के देखें इसको, तो इसके अंदर हम पाएंगे कि इसके अंदर क्या है, सीलिया है. ज़रा इस डायग्राम को रेफर करें हम. ये देखिए, ये हमने ट्रैकिया को क्या किया है, लंबा लंबा काटा है, और इस ट्रैकिया को क्या किया हमने, गोल काटा है. काटने के बाद हम देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको सीलिया कहा जाता है. ये ट्रैकिया का पूरा वॉल है, ठीक है. दिस इज़ द वॉल, मीन्स द ट्रैकिया जो आपने देखा उसको अगर हम काट के देखें तो पाइप जो होती है, थोड़ा सा मोटाई होती है ना पाइप की, तो उस मोटाई के अंदर ये सब छुपा हुआ है. एक तो सीलियरी सेल्स हैं, ठीक है. ये सब म्यूकोसल ग्लैंड है, जो हमने आपको बताया कि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन के अंदर म्यूकस सेक्रीट होता है. तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जिससे म्यूकस सेक्रीट होता है, जिससे आने वाली हवा का जो अंदर जो डस्ट है वो वहीं रुक जाता है. प्लस एक क्लियर पाथवे होता है जो एयर को मॉइस्टन भी करता है, वार्म भी करता है. ये रे सीलियाज, दीज आर द सीलियाज, ठीक है. ये आपको सेक्शन अगर हम काट के इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है. तो दीज आर द सीलियाज. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इट इज ऑल्सो लाइंड विद अ मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड अ लेयर कंपोज्ड ऑफ सेल्स कंटेनिंग स्मॉल hair-like projections called cilia. What do you mean by projections? भाई हेयर जो है वो उगेगा तो बाहर की तरफ निकलेगा, तो इस बाहर की तरफ निकलेगा तो प्रोजेक्शन. तो पूरे ट्रैकिया में बाहर छोटे छोटे सीलियाज निकले रहते हैं. द सीलिया इन द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई acts as a defense system for the body by keeping the airways clear of mucus, dust, dirt and any other foreign particles. This allows us to breathe easily without disturbance. जैसा कि हमने पहले ही बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर किया कि लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होते हैं. The function of lungs is only and only to pass on oxygen into the blood and carry the CO2 of the blood outside of the body. This much is the function for lungs. Not to stop any foreign particles, not to filter any dust particle. This is not at all the function of lungs. The only function is to transfuse oxygen into the blood and CO2 out of the blood. Rest, if you are inhaling any dust particle, any foreign particle, it must be stopped into the nose, into the this thing, trachea only. Fine. This has to be stopped before entering into the lungs. So what is the mechanism of stopping these particles before entering into the lungs? So the mechanism lies into the trachea. The trachea is containing cilia plus mucous membrane. Fine. You all know that, ठीक है. तो these trachea's structures, जो cilia है और क्या है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रहे हैं, ये हवा को मॉइस्ट कर रहे हैं, हवा को थोड़ा सा वार्म कर रहे हैं, प्लस एनी डस्ट पार्टिकल्स हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स हुआ, उसको उसी जगह पर रोक रहे हैं. जो सीलिया है इन पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं. प्लस कफ जब करते हैं हम, खांसते जब हैं, तो उस खांसी के माध्यम से ये सारा चीज़ बाहर निकल जाता है. फाइन. तो इससे क्या होता है, दिस अलाउज अस टू ब्रीथ इजीली विदाउट डिस्टर्बेंस. ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत इजीली विदाउट डिस्टर्बेंस चलती रहती है. द ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय C-shaped
रिंग्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये डायग्राम हम देखें, ये देखिए, ये ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया में आप देखें छोटे छोटे से रिंग्स हैं जो कि सी शेप के क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम इस ट्रैकिया को टर्न करके इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो हमें कोई भी कार्टिलेज नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ये इसकी सिर्फ मस्कुलर लाइनिंग ही नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि पीछे तो एक तो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे, ठीक है, पीछे रीढ़ की हड्डी होने के कारण इसको वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। अनदर रीज़न फॉर नॉट हैविंग एनी कार्टिलेज बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर इज, इसलिए नहीं होता पीछे कोई कार्टिलेज कि जब हम खाना को एनगल्फ करते हैं या ईसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप जो है उसको भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है सो दैट इट कैन एक्सटेंड थ्रू दिस प्लेस। फाइन, ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ये सी शेप्ड इसके सामने कार्टिलेज लगे रहते हैं। ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेज इसके सामने इसलिए लगे रहते हैं, जो ईसोफेगस को जगह मिल जाती है एक्सटेंड होने के लिए, प्लस इसको पीछे वर्टिब्रल कॉलम का सपोर्ट तो है ही। अच्छा, द ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, कंटेन्स स्मूथ मसल एंड एड्स इन कफिंग। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया के सामने सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज लगे हैं, आपको हमने बताया कि एक तो स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, प्लस क्या है कि इतने सारे ऑर्गन्स, मसल्स, नर्व्स, हार्ट, इतने तरह की चीज़ें, आर्टरीज, वेन्स सब हैं, जिसके कारण कि क्या हो सकता है कि ट्रैकिया अपना शेप खो सकता है, तो एयर अच्छे से पास ऑन नहीं होगी। इसलिए सी शेप्ड कार्टिलेज की हेल्प से क्या है, इसको थोड़ा सा इन शेप रखने में मदद मिलती है। प्लस क्या कर रहा है ये कि इसको एड करता है, ये ट्रैकिया को हेल्प करता है कफिंग में। जब हम खांसते हैं तो जो हवा बाहर की तरफ फोर्स होती है, उसको फोर्स होने के लिए भी कार्टिलेज का सपोर्ट से थोड़ा टफ रहेगा ट्रैकिया, तो कफिंग में इजीली होगा। ठीक है, कफिंग इजीली होगा, खांसी। स्पेशलाइज्ड सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस। ठीक है, लाइक दिस इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रैकिया में जो सी शेप्ड का जो रिंग्स हैं, इससे कफिंग में हेल्प होता है, इसको स्ट्रॉन्गनेस मिलती है, इसका शेप मेंटेन रहता है। ठीक है, और जो स्पेशलाइज्ड सेल है म्यूकस की, वो भी अपनी जगह पर रह पाती हैं। लाइक दिस इट इज़, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रैकिया है वो कई तरह की लेयर्स से मिलकर बनी है और कार्टिलेज भी इसके ऊपर है। Trachea is one part of our airway system. Airways are pipes that carry oxygen-rich air to your lungs. They also carry carbon dioxide, a waste gas, out of lungs. When you inhale air, air travels from your nose into larynx and down to trachea. क्या कह रहे हैं कि जब हमारे लंग्स ऑक्सीजन को लेना चाहते हैं, तब इसी ट्रैकिया के थ्रू से जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो ट्रैवल करती है इनटू द लंग्स। फाइन, वहाँ पर जो इसका एक्सचेंज है विद ब्लड है, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा लंग्स में आता है, और फिर से ब्रोंकाई की हेल्प से होते हुए ट्रैकिया का क्या काम शुरू हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एयर है उसको भी कैरी करना और उसको क्या करना, नेजल चैम्बर में देना और वहाँ से बाहर पास ऑन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस अगेन कम टू द डायग्राम। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉस्ट्रल्स से हवा अंदर आ रही है, नेजल चैम्बर में इसको थोड़ा वार्म किया जा रहा है, मॉइस्चर किया जा रहा है, रेस्ट काम बाकी ट्रैकिया करेगा। फेरिंग्स से होता हुआ, लैरिंग्स से होता हुआ ये ट्रैकिया में आ रहा है। ट्रैकिया में वापस से अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसे स्टॉप किया जा रहा है, सीलियास के थ्रू इसे ऊपर धक्का दिया जा रहा है, फिर कफिंग से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस से लंग्स में जा रहा है, एंड देयर oxygen is given into this again, and trachea carries the carbon dioxide air out of the body. And you have also seen this diagram where you can clearly see how the trachea is situated in our body. Then we have got the nodes.
Then again in this diagram we are watching that how thoracic trachea and cervical trachea. What do you mean by this? Means some of the part is in the neck where it is having C-shaped cartilages, and again in the thoracic chamber also it is having C-shaped cartilages. C-shaped because it is only having cartilages in frontal area, not at the back, because of the two reasons. First of all, it is getting the vertebral support. Secondly, esophagus also gets some space to extend. Thirdly, this is the diagram for cilia in the trachea. Fine. How mucous membrane is there, mucous glands are arranged, ciliary glands are arranged. So today till here we are concluding, and tomorrow we will be getting the topic bronchi and bronchus, how they are fine divided, and the further topics also. So for today I think it is very clear that how the trachea is situated and what is its function and structures. How do you like the session? Please comment me. If you have any question, let me know in the comment box. Thank you so much.